بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ آج ہماری دینیات کی کلاس ہے تو آج ہم لوگ روزے کے مسائل شروع کریں. دیکھیے روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. صبح صادق بولے تو جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا نا اس وقت سے لے کر غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے تک. صبح صادق بولے تو ایکچولی کسے بولتے تو معمول سے جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا نا تو اس وقت ایک صبح کاذب ہوتی. صبح کاذب بولے تو ایک ایک اجالا آ کے ختم ہو جاتا. سیکنڈ ٹائم جب وہ اجالا آتا نا تو وہ اجالا پھر اب باقی رہ جاتا تو اسے صبح صادق بولتے. ٹھیک ہے. تو اور ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے اندازہ ہونے کے لیے ہم لوگ ایسے اس کو ایسا سمجھ سکتے کہ فجر کی اذان کا جو وقت شروع ہوتا نا فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا نا وہ صبح صادق کا وقت ہے. ٹھیک ہے. صبح صادق ہونے کے بعد ہی فجر کی اذان اور نماز دونوں بھی پڑھنے کا. ٹھیک ہے. تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی سورج ڈوبنے تک مغرب کا وقت شروع ہونے تک عبادت کی نیت سے یعنی اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات بولے تو صحبت بولے تو میاں بیوی کا آپس میں جو ملاب ہے اسے صحبت اس سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. بولیے روزہ کسے بولتے ہیں؟ ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات یعنی صحبت وغیرہ سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. اوکے. عربی زبان میں روزے کو صوم اور روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. روزے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک تعالیٰ صاف طور پر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہمارے اندر تقوی پیدا ہونے کے لیے یعنی ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت پیدا ہونے کے لیے اللہ کے آرڈرز کو فالو کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہونے کے لیے روزے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہیں. جو بندہ روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی دوسری عبادتیں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے لیے دوسری عبادتیں کرنا مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ روزے کی فضیلت ہے. روزے کی یہ فضیلت ہے. اس کے علاوہ روزے کے بے شمار فوائد ہیں. حدیثوں میں ہم اس کے فوائد پڑھیں گے انشاءاللہ. دنیاوی فوائد بھی بہت سارے ہیں. دنیا کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ ایک مہینہ جب ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے باڈی کے اندر جو ایکسٹرا فیٹس اور جو ٹاکسنس ہیں وہ ختم ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کولیسٹرول وغیرہ کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو کینسر کا رسک ہے اور ہارٹ اٹیک کا رسک ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے روزے کی برکت سے. تو روزے کے دنیاوی فائدے ہیں. آخرت کے فائدے کیا ہے دیکھیے. حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. 10 ٹائمز سے لے کر 700 ٹائمز تک بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے آپ ایک نماز پڑھے تو آپ کو 700 نمازوں کا ثواب 10 نمازوں کا ثواب اس طرح دوسرے جتنے بھی نیک کام ہیں اس کا ثواب 10 ٹائمز سے لے کر 700 ٹائمز تک بڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوائے روزے کے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے. روزہ ہے نا بندہ صرف اللہ کے لیے رکھتا. کیوں بولے تو دیکھیے دوسری جو عبادت ہے مثال کے طور پر نماز ہے. نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں دکھاوے کے چانسز ہو سکتے ہیں. یعنی میں نماز کو جا رہا ہوں تو محلے والے دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ مولانا بہت نمازی ہے یا پھر محلے میں مسجد جانے کے بعد مسجد کے مقتدیوں کو بتانے کے لیے میں لمبی چوڑی نماز پڑھ سکتا ہوں.
लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिसमें बंदा अपने घर में रहता है, घर में फ्रिज में पानी होता है, कौन देखने वाला भी नहीं रहता, उसके बावजूद सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के डर से और अल्लाह की मोहब्बत से भूखा प्यासा रहता ना, तो ये अल्लाह को इतना पसंद आता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि रोजा बंदा मेरे लिए रखता है, ठीक है, और मैं ही अपनी मर्जी के मुताबिक उसका इनाम व सवाब दूंगा। अल्लाह लिमिट नहीं बताए, बल्कि मैं अपनी मर्जी से अनलिमिटेड अपने बंदे को दूंगा, बल्कि अल्लाह तबारक ताला बयान फरमा रोजे का जो बदला है अल्लाह खुद दे। मेरा बंदा मेरी रजा के लिए, मेरी खुशनुदी के वास्ते अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपना खाना पीना छोड़ देता है, तो मेरा बंदा मेरे लिए खाना छोड़ रहा, अपनी ख्वाहिश सब कुछ मेरे लिए छोड़ दे रहा, तो उसका बदला मैं दे दूंगा क्या अल्लाह। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, रोजेदार के लिए दो खुशियां। एक इफ्तार के वक्त, सुबह से भूखा रहकर जब इफ्तार का वक्त होता तो पानी पीने से पहले उसे जो खुशी मिलती है ना, वाकई वो बहुत जबरदस्त खुशी है, ठीक है। तो एक खुशी वो है। दूसरी अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त, दूसरी जो खुशी उसे मिलेगी अल्लाह से मुलाकात जब उन्हें करता ना, तो अल्लाह उसे जो रोजे का अजर देता ना, वो अजर इतना ज्यादा रहता है कि बंदा खुश हो जाता। तो उसी के बारे में अल्लाह के नबी बयान। और रोजेदार के मुंह की बू, रोजे में हमारे अंतड़ियां सूखने की वजह से मुंह से जो बू आती है ना, वो अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है। अल्लाह के नजदीक वो खुशबू बहुत पसंदीदा है। मुश्क जो कि सबसे कीमती और बहुत जबरदस्त खुशबू है, अल्लाह के नजदीक वो बू उससे भी ज्यादा माने रखती है। तो ये हो गई रोजे की फजीलत। रोजा छोड़ने पर वाइद, रोजा छोड़े तो क्या नुकसान। जो आदमी शरीय उजर और बीमारी के बगैर, उसे क्या भी शरीय उजर यानी शरीयत के हिसाब से उसे क्या भी रीजन नहीं है उसके पास, ठीक है, और बीमारी के बगैर, बीमारी भी क्या भी नहीं उसके बगैर, रमजान का एक रोजा भी छोड़ दे, फिर वो उसकी जगह उम्र भर भी रोजे रखे, तो जो चीज फौत हो गई वो पूरी अदा नहीं हो सकती। एक बार छुड़ गई सच। रमजान का रोजा उन्हें बाद में खजा कर ले सकता, लेकिन रमजान के एक रोजे का जो सवाब है वो पूरी जिंदगी रोजा रखे तो भी उसे वो सवाब नहीं मिलता। ये यहाँ पर इस हदीस में बयान अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया है, तिरमिजी की हदीस है। अच्छा, रोजे की नियत। रोजे के सही होने के लिए नियत यानी इरादा शर्त है। रोजे की नियत यह है कि अपने दिल में अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोजा रखने का इरादा करे। जबान से कहना जरूरी नहीं, समझ में आ रहा, इरादा होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप क्या करें, आप नियत ही नहीं, आप चुपके मामूल से सो गए थे, मिसाल के तौर पर आज रात में मैं लेट से सोया, समझे 2 बजे की 3 बजे की क्या की एक प्रॉब्लम की वजह से लेट से सोया। अब मैं सो के उठना चाहिए एकदम दोपहर में 1 बजे उठा या फिर 2-3 बजे उठा, अब है ना 2-3 बजे उठने के बाद अब क्या है बा, इफ्तार को ज्यादा टाइम नहीं है ना, 1-2 घंटे छे, चलो रोजा रख लेंगे, बोले तो रोजा नहीं होता। समझ में आ रही बात, रोजा नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रात में मैं नियत करके सोया था कि मुझे सुबह में रोजा रखना है और शहरी के लिए उठना है, इत्तेफाक से आंखा नहीं खुले, तो चूंकि पहले से नियत थी, इसलिए आपका, अगर आप वैसा खाली भूखे रह गए तो रोजा हो सकता है, आपका रोजा हो जाए, ठीक है। तो नियत इरादा यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, और वो इरादा दिल से होता है। नियत हुआ इरादा तुम बिलकल्ब, नियत कहते हैं दिल के इरादे को, जुबान से बोलना जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग असुमु गदन लिल्लाही, वो अल्लाहुम्मा इन्नी असुमु लका फग़फिर लिमा क़द्दमतु व मा अख़रतु, ये बोलते। तो ये सब भी जो अरबी में नियत बोल के समझते कि ये दुआ है, ये पढ़ना जरूरी है, समझते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिल में इरादा कर लिए तो भी काफी। हाँ, अगर अलबत्ता आप जुबान से बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। रोजे का अदा करना कब वाजिब हो जाता है, यानी लेट करे निसर का पक्का आपका अब रखना बोलने का कब वो जरूरी है। देखिए, नंबर 1, रमजान के रोजे का अदा, रमजान के रोजे का अदा करना यानी बिला ताखिर, लेट करे ने जैसा रखना, उस वक्त, उस वक्त, ये इस नहीं उस है, उस वक्त वाजिब है जबकि 4 शर्तें पाई जाए। 4 शर्ता उसके अंदर अगर है तो कंपलसरी उन्हें जब का जब लेट करे सका और रोजा रखना। नंबर 1, सेहत हो,
यानी रोजा रखने से किसी बीमारी या कमजोरी के पैदा होने या बढ़ जाने का अंदेशा ना हो, यानी उन्हें बीमार नहीं है और उसको कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है कि रोजा रखे तो उन्हें उसकी बीमारी बढ़ जाती या फिर उन्हें हलाक हो जाता, ऐसा उसको कोई अंदेशा नहीं है, तो उसके लिए रोजा रखना बिला ताखिर उसके लिए फर्ज और वाजिब है, जरूरी है। नंबर 2, हालत सफर में ना हो। सफर में नहीं सर का घर में है तो कंपलसरी उन्हें जब का जब रोजा रखना चाहिए। अगर सफर में है तो उन्हें रोजा छोड़ के बाद में रख सकता, बीमारी में है तो रोजा छोड़ के बाद में रख सकता, लेकिन अगर हाँ सफर में नहीं है बीमारी में नहीं है तो कंपलसरी जब का जब रखना उसके लिए जरूरी है। नहीं अब अच्छा होने के बावजूद अच्छा अच्छा अट्टा कट्टा है, सफर में भी नहीं है, बाद में रख लेंगे ले बोल के खजा करा तो वो दुरुस्त नहीं है, नहीं करना, उसके ऊपर वाजिब है कि उन्हें उसी वक्त वो रोजा रखे। नंबर 3, औरत हो तो हैज यानी औरतों की जो मखसूस नापाकी होती है ना उससे पाक होना जरूरी है। अगर हालत हैज में औरत है तो उसके लिए वो रोजे रखना उसी वक्त वाजिब नहीं है, उन्हें वो रोजे नहीं रखेगी बल्कि बाद में उन रोजों की खजा करेगी। नंबर 4, इसी तरह वो निफास यानी बच्चा पैदा होने के बाद जो खून निकलता है उससे पाक हो, यानी निफास की हालत में भी ना हो। निफास की हालत में है तो उसके लिए उसी वक्त रोजा रखना वाजिब नहीं है बल्कि बाद में वो खजा करेगी। अगर ये शर्तें ना पाई जाए तो रोजे को खजा करना जायज है। ये 4 शर्तें नहीं है, यानी बीमारी भी नहीं है, अच्छा तंदुरुस्त है, सफर में नहीं है, अपने मकाम पर है, औरत है, हैज की हालत में नहीं है, निफास की हालत में नहीं है, 4 चीजें नहीं है तो उसके लिए उसी वक्त रोजा रखना जरूरी है, उन्हें खजा नहीं कर सकता नहीं कर सकती। बात आई समझ में? जी भैया। चलिए आगे, रोजे के सही होने की शर्तें। ये कंपलसरी रोजा खजा करें सर का जब का जब रोजा कौन रखना करेगा अब तक समझ लिए, ठीक है। अब रोजे के सही होने की शर्तें, यानी एक आदमी या एक औरत रोजा रख रही तो उसका रोजा सही होना बोले तो क्या शर्त है, देखिए। देखिए नंबर 1 नियत होना, इरादा नहीं तो इरादा नहीं सर का चुपके भूखा हो को मैं रोजा बोले तो वो नहीं होता। इरादा हाँ नियत करा था, नहीं खाए सर का भूखा है तो वो अलग चीज, उसका रोजा हो जाता है। नियत नंबर 1 नियत का होना, नियत करे तो रोजा सही होता वरना रोजा उसका नहीं होता। नंबर 2 मुसलमान होना, मुसलमान नहीं सर का रोजा अगर कोई रख रहा तो उसका रोजा काबिल कबूल अल्लाह के पास नहीं है, ईमान के बगैर कोई भी इबादत अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। नंबर 3 औरत हो तो हैज और निफास से पाक हो, अगर औरत हैज और निफास की हालत में नहीं है तो उसका रोजा हो जाएगा, सही होगा। अगर हैज की हालत में निफास की हालत में होकर रोजा रखती है तो उसका रोजा कबूल इस नहीं होता, सही नहीं होता, ठीक है। अगर किसी औरत को रोजे की हालत में हैज आ जाए तो उसका रोजा टूट जाता, उसे वैसा भूखी प्यासी रहने की जरूरत नहीं, यह मसला अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। बात आगे समझ में? अब आगे रोजे के फराइज, यानी रोजा अगर आप है तो कंपलसरी ये चीजें आप लोगों को फॉलो करना है। क्या क्या? नंबर 1 देखिए, सुबह सादिक से सूरज के गुरूब होने तक, यानी फजर की नमाज का जो वक्त शुरू होता है उस वक्त से लेकर सूरज डूबने तक, यानी जो मगरिब का वक्त शुरू होता है उस वक्त तक खाने से और उस जैसी चीजों से, उस जैसी खाने से बोले तो पर्टिकुलर चावल रोटी बोल को नहीं, फ्रूट्स रहने स्नैक्स रहने क्या भी रहने नहीं खाना, उस जैसी चीजों से परहेज करना। नंबर 2 सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक पीने से और उस जैसी चीजों से परहेज करना, पीने से भी और पीने से रिलेटेड जितनी चीजें और तमाम चीजों से परहेज करना। नंबर 3 सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक, सूरज के डूबने तक जिमा यानी बीवी से सोहबत करना और इसी जैसी चीजों से, यानी यानी जिमा करने के बाद सोहबत करने के बाद जो ख्वाहिश पूरी हो जाती ना इंसान की, तो अगर सोहबत तो नहीं कर रहा लेकिन कोई ऐसा काम कर रहा जिसके उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, ठीक है, तो उससे भी रोजा टूट जाता, उससे भी रोजा नहीं होता। तो रोजा होना है बोले तो ये 3 चीजों से, खाने से पीने से सोहबत से बचना उसके लिए जरूरी है, तभी उसका रोजा होता। ये रोजे के फराइज है, अगर इनमें से कोई एक चीज भी छूटती है ना तो रोजा नहीं। बात है समझ में? चलिए अब आगे देखिए रोजे की सुन्नतें। रोजे की सुन्नतें यानी रोजे में क्या क्या काम करना सुन्नत है, देखिए। नंबर 1 सेहरी खाना,
सहरी खाना है ना सिर्फ सुन्नत है, ये बात अच्छी तरह ज़हन में रखो। बहुत जने रमजान में पूछ पूछ के परेशान कर देते, हजरत हम लोग शहरी में नहीं उठ सके, भूखा रोजा रह सकते क्या, लास्ट टाइम पे उठ के खाली पानी पिए रोजा रख सकते क्या, लास्ट टाइम में उठ के खाली नियत करे रोजा रख सकते क्या? आराम से रख सकते। नियत नियत शर्त है, खाना शर्त नहीं है। आप सिर्फ नियत करके रात में नियत करके सो गए, शहरी को नहीं उठे तो भी रोजा हो जाता। नहीं, शहरी के टाइम उठ के आप लास्ट टाइम पे उठ के खाली नियत कर लिए तो भी रोजा हो जाता। ठीक है, तो आप नियत कर सकते हैं। शहरी खाना सुन्नत है, शहरी खाए तो सवाब मिलता, नहीं खाए तो गुनाह क्या भी होता नहीं। नंबर 2, शहरी आखिरी वक्त में करना। आखिरी वक्त में बोलते वो जो लास्ट टाइम है, लास्ट आखिरी वक्त में बोले तो अजान खत्म होने तक खाने का नहीं, बल्कि जो रात का आखिरी हिस्सा है, रात में 10 बजे खा ले सो जा तो मैं शहरी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जैसा रात में जो जो भी टाइम है 3:30-4 बजे उठ के जो खाने का है वो आखिरी वक्त में करना बोले तो वो है। ठीक है, टाइम हो जाने के बाद करना इसका मतलब नहीं है। नंबर 3, इफ्तार का वक्त होते ही इफ्तार खा लेना, इफ्तार कर लेना। इफ्तार का टाइम होते इफ्तार कर लेना, नहीं ले आप जरा देर भूख करेंगे साहब ज्यादा मिलता बोले तो बेवकूफी है। ठीक है, सुन्नत के खिलाफ अमल है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई मजबूरी थी, मिसाल के तौर पर आप सफर में हैं, आप रोजे की हालत में, इफ्तार का वक्त हो गया, आपके पास इफ्तार करने के वास्ते पानी नहीं है, क्या भी नहीं है, तो आप बाद में भी इफ्तार कर सकते। आपको ये वक्त पर इफ्तार करना सुन्नत है, फर्ज या वाजिब नहीं है। ठीक है। अच्छा, रोजे के मुस्तहब्बात। मुस्तहब्बात बोले तो वो काम जिसके करने से सवाब मिलता, नहीं करे तो क्या भी गुनाह होता नहीं। नंबर 1, रोजे में 2 बातें मुस्तहब है। नंबर 1, तमाम किस्म के गुनाहों से खास तौर के साथ बचना, खुसूसियत के साथ खास तौर पे हर तरह के गुनाह से बचना। नंबर 2, नफिल इबादत, जितने भी नफिल इबादत है उसमें ज्यादती करना, उसको खूब, नफिल इबादतें जो भी उसको ज्यादा से ज्यादा करना। ठीक है। अब लास्ट में रोजे को तोड़ने वाली चीजें देखो, रोजा किन चीजों से रोजा टूटता है? वो चीजें जिनसे रोजा टूट जाता है और सिर्फ खजा वाजिब होती है। रोजे को तोड़ने वाली चीजें 2 तरह की, एक क्या बोले तो वो चीजें जिनसे रोजा टूट जाता है, बाद में सिर्फ खजा वाजिब होती, ठीक है, बाद में खाली वो रोजा रख ले तो काफी। दूसरी वो चीजें जिनसे रोजा टूट जाता है, खजा भी वाजिब होती, कफारा भी वाजिब होती। ठीक है। अच्छा, जी 1 मिनट रुक जाइए, इसमें थोड़ा, वो हम लोग पढ़े थे, रोजे के मुस्तहब्बात तक पढ़े थे। ठीक है। अब उसके बाद रोजे को तोड़ने वाली जो चीजें है ना, वो 2 तरह की है। एक वो है जिनसे सिर्फ रोजा टूटता है, बाद में खजा कर ले तो हो जाता है। दूसरी वो है जिससे रोजा टूटता है, सिर्फ खजा नहीं बल्कि खजा के साथ कफारा भी करना पड़ता है, कफारा भी अदा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी किन चीजों से रोजा नहीं टूटता वो देखिए। वो चीजें जिनसे रोजा नहीं टूटता, नंबर 1, भूले से कुछ खा पी लेने से। भूल को क्या तो भी आप खा लिए पी लिए, चाहे आप दबा के पूरी 1 प्लेट बिरयानी खा लिए भूल कर, तो भी रोजा नहीं टूटता। और पूरा 1 लीटर पानी भूल के पी लिए तो भी आपका रोजा नहीं, भूल कर याद से एक खतरा पिए तो भी रोजा खत्म हो गया। नंबर 2, भूले से हम बिस्तरी कर लेना। भूल गए, फजर के बाद मियाँ बीवी मिलकर सो गए थे, आदत थी, आदत के हिसाब से भूल गए, नींद के ख्याल में कर लिए, तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 3, नींद में एहतलाम का हो जाना। मर्दों को नींद की हालत में ख्वाब वगैरह देखने पर जो एहतलाम होता है उससे भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 4, सारे बदन पर तेल या कोई मरहम यानी कोई दवाई वगैरह लगाने से भी, यानी बॉडी मसाज करने से भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 5, सुरमा लगाने से, अगरचे उसका असर हलक में महसूस हो, सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटता। खुशबू यानी अतर लगाने से और सूंघने से भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 7, मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता। नंबर 8, अपना थूक या बलगम निगल लेने से रोजा नहीं टूटता। मामूल से मेरे मुंह से जो थूक आ रहा वो मैं निगल सकता, ठीक है, थूक आ रहा। बहुत सारे लोग रोजे में थूक निगलना नहीं, बोल थूक 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 को लंबे हो जाती, शाम तक थूकने की जरूरत नहीं है, अपना थूक आराम से आप निगल सकते। नंबर 9, चने से कम कोई चीज दांत में फंसी हुई थी, उसे मुंह से निकाले बगैर निगल लिया।
ठीक है, यानी कोई चीज चने से भी छोटी थी, चना चना आता ना, चना उससे भी छोटी कोई चीज दांत में अटक को थी, उसे मुंह से बाहर निकाला नहीं, वैसा अंदर का अंदर निकल लिया तो उससे रोजा नहीं टूटता। ठीक है, मसला अच्छी तरह जहन में रखो। नंबर 10, मक्खी, धुआं, गुबार बोले तो धूल, आटा उड़कर हलक में बगैर इरादे के, यानी हमें हमें ले को डाल लिए नहीं, अब बगैर इरादे के चले गया तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 11, खुद ब खुद खई होना, खा मुंह भरकर हो, वो हो को वो खई हुई, मुंह भर को खई हुई तो भी रोजा नहीं टूटता। ठीक है। नंबर 12, खई का खुद ब खुद हलक में लौट जाना, खई हो को वोच वापस लौट गई, हमें होना बोल को निकले नहीं, आयसर का आ को वोच चले गई तो इससे भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 13, बदन से खून निकलवाना, खून मार लग को निकला तो भी रोजा नहीं टूटता, हमें ब्लड डोनेट करे तो भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 14, ग्लूकोज चढ़ाते ना हमारे रगों में तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। नंबर 15, इंसुलिन या शुगर शुगर का इंजेक्शन लेने से भी रोजा नहीं टूटता। तो ये वो काम है जिससे रोजा नहीं टूटता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे इंशाल्लाह रोजा कब रोजे की खजा कर सकते हैं, यानी रोजे को बाद में रखने की इजाजत है, और रोजे को तोड़ने वाली चीजें क्या है, फिदिया क्या है, कफारा क्या है, वो सब बाकी के रोजे के बारे में जो भी बकिया मसाइल है ना, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अभी तक जो मसाइल पड़े इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी, भैया कज़ा रोजा अपन के जिंदगी में कब तक भी रह सकते क्या, फिर इस रमजान तक की चांस रहती है? कभी भी रह सकते हैं, बट आइंदा रमजान आने से पहले पहले उसको कंप्लीट कर लेना एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको कंप्लीट कर लेना अच्छा है। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।